اتحاد ضروری ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق اللہ العظیم۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و باں میں دیرینہ شناساں پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ انتہائی واجب الاحترام اور قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، وقت بہت مختصر ہے۔ میں سب سے پہلے علماء کمیٹی کے ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ان مشکل حالات میں اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اکابرین کے طرز عمل پر چلتے ہوئے ایک بار پھر اس علماء کنونشن کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں پہلی بات آپ سے کرنا چاہوں گا، میں دوسری بات ارباب اختیارات سے کرنا چاہوں گا۔ جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں اسکرین پر کچھ گفتگویں سنی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے بھی اپنے ضبط کو کس طرح، اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کیا تھا وہ میں جانتا ہوں، اور آپ نے بھی جیسے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں۔ وہ گفتگو ایک لفظ بھی اس قابل نہیں تھا کہ اسے سن کر یہاں بیٹھا جائے اور ہم چین کی نیند پھر سو جائیں یا ہم سکون سے کچھ کھا سکیں، ایک لفظ بھی ایسا نہیں۔ ہر لفظ گندگی اور غلاظت سے بھرا ہوا تھا، دل کو دکھانے والا اور زخمی کرنے والا اور دل چیر دینے والا تھا، لیکن آپ نے اور میں نے تحمل کے ساتھ اسے سنا۔ ہم نے یہ آپ کو کیوں سنوایا اور آپ کے سامنے یہ نقشہ کیوں رکھا کہ کل جب مولانا حق نواز نے کہا تھا کتاب دکھا کر کے یہ کہتے ہیں علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں آپ، میں آپ کی پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرخہ سمجھتا ہوں، میں آپ کے جوتے کو اپنے گلے کا ہار سمجھتا ہوں، میں کسی لحاظ سے آپ کے اپنے آپ کو مقابل نہیں سمجھ سکتا، میں ہر لحاظ سے کمزور ہوں، لیکن خدا کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ گفتگو اس قابل تھی کہ اسے سنا جائے؟ یہ اس قابل تھی کہ اسے معاف کیا جائے؟ کتنا ظرف ہے ہمارا، کتنی وسعت ہے ہمارے اندر، ہم نے اتنی گندگی سنی، کون سی غلاظت ہے جو انہوں نے نہیں کی ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں یہ صحابہ کی توہین ہے؟ مجھے اللہ کی قسم یہ حضور کی توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے، یہ اللہ کے انبیاء کی توہین ہے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں بچا، ان گفتگوؤں میں کوئی نہیں بچا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد 4 کے علاوہ یا 3 کے علاوہ باقی مرتد ہو گئے تھے، یہ اعتراض ان مرتد ہونے والوں پر نعوذ باللہ نہیں ہے، یہ اعتراض تو پڑھانے والے پر ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں انہیں 23 سال تک جنہوں نے پڑھایا تھا وہ کون تھا؟ تو آپ جواب دیتے وہ امام الانبیاء تھا۔ کیا امام الانبیاء کی شان میں توہین نہیں ہوئی؟ کیا خاتم النبیین کی تاثیر پر حرف نہیں آیا؟ کیا رسول اللہ کی ذات گرامی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا؟ کیا مکتب اور مدرسہ اور
कहा, कोई कहता है 3 साल पहले कहा। मैंने कहा तुम कहते हो इसने 6 साल पहले कहा और 3 साल पहले कहा। मैं तुम्हें कहता हूं इन्होंने सदियां पहले किताबों में ये लिखा। 6 और 5 साल की बात नहीं है, अकीदे के ज़ाहिर होने की बात है, खुलकर बाहर आने की बात है, उसके इजहार की बात है। और मैं सवाल करना चाहता हूं, इतनी बड़ी तौहीन के बाद उलमाए किराम बताएं, क्या तशय्युअ में से कोई एक फर्द भी जो अपने आप को मुतज़िल समझता है वो सामने आया और उसने आकर ये कहा कि ये गलत बात इसने की है, इसका नुक्ता नजर गलत है, हम इस नुक्ता नजर को कंडम करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते। कोई एक नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? किसी का अकीदा भूल गया और किसी का छुपा हुआ है, अंदर से सबका अकीदा यही है। दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम समेत अंबिया की तौहीन हुई और सीने पर हाथ रखकर कहा हमारा यह अकीदा है, देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीसों, मशाइख आज़म, अकाबिरीन मिल्लत, 10 बस्ता हाथ जोड़ने लगा हूं, 10 बस्ता हाथ जोड़ने लगा हूं, गुस्ताखी की माज़रत चाहने लगा हूं, माफी मांगने लगा हूं। मैं आज आपसे माफी मांगता हूं, माफ कर देना, लेकिन रब का वास्ता है बताओ, इस गुफ्तगू के सुनने के बाद नींद आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, करार आ जाएगा। इस गुफ्तगू के बाद मुझे अपनी मस्जिद से मोहब्बत है रहे, मदरसे से मोहब्बत है रहे, जान से मोहब्बत है रहे, लेकिन एक सवाल पैदा होता है इस गुस्ताखी के बाद क्या उठना, जुद्दोजहद करना, मेहनत करना, मैदान अमल में आना ये हम पर लाजिम हुआ या नहीं हुआ? और मैं तो दूसरे अल्फाज में कहता हूं, इस गुफ्तगू के सुनने के बाद हमें उठ खड़ा होना हमारे लिए फर्ज हो चुका है। और इस गुफ्तगू के सुनने के बाद भी अगर कोई नहीं उठता तो मुझ समेत वो अपने ईमान पर जरा नजर डाले। हमें आपने ताने दिए फिरकावारियत के, हमें लोगों ने ताने दिए दहशतगर्दी के, हमें ताने दिए तखरीबकारी के, हमें ताने दिए शिद्दत पसंदी के। हमें ताने देने वालों जरा ये जो आपने सुना है, मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है? मैंने एक मीटिंग में भी और गुज़िश्ता अपनी क्लिप में भी ये बात कही है कि एक आदमी कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान गद्दार, पाकिस्तान के बनाने वाले गद्दार, पाकिस्तान का तसव्वुर करने वाले गद्दार। एक आदमी ये बात कहता है और दूसरा आदमी जवाब में कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के बनाने वाले जिंदाबाद, पाकिस्तान के बनाने वाले पाइंदाबाद, पाकिस्तान का दस्तूर आइन जिंदाबाद। एक ये कहता है, दूसरा वो कहता है। अरबाब इक़्तिदार, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या ये दोनों बराबर है? क्या इन दोनों पर एफआईआर होगी? क्या इन दोनों को कटहरे में लाया जाएगा? इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? तो मुझे वहां कहा गया इनमें फर्क है। मैंने कहा जहां वहां फर्क है वहीं यहां भी फर्क है। एक तरफ सहाबा को गाली दी जा रही है, नबी के ससुर की तौहीन हो रही है, इमाम सहाबा की तकफीर की जा रही है। एक मसले को सामने रखकर जिसकी हकीकत कोई नहीं है, अबू बकर की तकफीर की जा रही है, उमर को गाली दी जा रही है, मुआविया पे लानत भेजी जा रही है, सारे सहाबा का इख्तिलाल करके उन्हें मुर्तद कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ अबू बकर की फजीलत बयान की जा रही है, उमर की शान बयान की जा रही है, उस्मान की असमत बयान की जा रही है, अली की जो है तक़द्दुस बयान किया जा रहा है, अम्मी आयशा की इफ़्फ़त बयान की जा रही है। तो कहते हो ये दोनों एक जैसे मसले? किसने कह दिया एक तरफ मसला है, एक तरफ दहशतगर्दी है, तकरीब कर रही है, फिरकाबंदी है और फिरकावारियत है, और दूसरी तरफ गैरतमंदी है। क्या ये गैरतमंदी और दहशतगर्दी बराबर हो सकती है? इसलिए आपको ये ताना देकर कि ये फिरकावारियत है हम पीछे हट गए, मैं फिरकावारियत से बच जाऊं, मुझे सब अच्छा कहें। मैं अगली बात भी कहना चाहता हूं, उलमाए किराम, ये सोच हमारी पैदा हो गई है, हम वो हैं जिनको सब सच्चे कहें, जिनको सब अच्छा कहें। हमारे साथ तो सब मिलते हैं मौलवी साहब, हम तो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते, वो हमारे पीछे पढ़ लेते, हम उनसे हाथ मिला लेते, वो हमसे मिला लेते, वो हमारी दावत करते, हम उनकी दावत करते। उलमाए किराम बेअदबी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आज का शिया आपको बुलाकर आपके पीछे नमाज पढ़ रहा है, आपको बुलाकर आपसे हाथ मिला रहा है, गुस्ताखी भी कर रहा है, आपसे भी हाथ मिला रहा है,
آپ میں ایسی کون سی خوبی ہے جو ابو بکر میں نہیں تھی؟ کون سی بات ایسی آپ میں آ گئی جو صحابہ رسول میں نہیں تھی کہ وہ ابو بکر صدیق کو مومن ماننے کو تیار نہیں ہے اور تمہیں امام ماننے کو تیار کیوں ہو گیا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق کی صداقت کا انکار کر کے اس کا بڑا کہتے ہیں میں خلافت کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میں خلافت کو نہیں مانتا، یہ کہہ کر وہ ابو بکر کی خلافت کا انکار کر رہا ہے، تمہاری قیادت کا اظہار کیسے کر رہا ہے؟ سوال ہے، میں نے پہلے ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، علماء کرام آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، میں اس کے ساتھ اگلی بات کرتا ہوں، عوام آپ کے پاس ہے، منبر کا میڈیا آپ کے پاس ہے، مسجد کی امامت آپ کے پاس ہے، مدرسہ آپ کے پاس ہے، مکتب آپ کے پاس ہے، بتائیے یہ تمام ذرائع ہوتے ہوئے بھی اگر اصحاب رسول میں تبرہ ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ آئیے گریبان میں جانتے اللہ کی قسم زخمی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تم مانو یا نہ مانو میں ماننے کو تیار ہوں، ذمہ دار ہمیں، غلطی ہماری ہے، قصور ہمارا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی بزرگ مسجد کا امام کھڑا ہو کر یہاں مجھے تسلی کے لیے کہہ دے اس نے اپنی مسجد کے مقتدیوں کو عشرہ مبشرہ کے نام یاد کروائے ہیں، کوئی مجھے کھڑا ہو کر بتائے اس نے نبی کی 4 بیٹیوں کا تعارف اپنے منبر سے کرایا ہے، کوئی مجھے بتائے اس نے پیغمبر علیہ السلام کے خلفائے راشدین کا تعارف کرایا ہے، کوئی مجھے بتائے اس نے ابو بکر عمر عثمان و علی کے گستاخ اور منکر کا شریف نقطہ اور فقہی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت بتائی ہے، مجھے بتائے کہ کسی شخص نے غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے کا جو اس پر جو لگتا ہے فتویٰ لگتا ہے وہ فتویٰ لوگوں کو بتایا ہے، بتائیے کیا آپ نے بتایا ہے؟ جواب آئے گا یہ سب کچھ تو نہیں بتایا، ہم نے عمومی بات کی ہے، ہم نے یہ خصوصی بات نہیں کی ہے، جب تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قابل رشک ہے، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قابل فخر ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا نعوذ باللہ یہ مرتد ہے، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا نعوذ باللہ یہ دار اسلام سے خارج ہے، انہوں نے بتایا نعوذ باللہ یہ غاصب ہے۔ آپ اس کی گفتگو نہیں سن رہے تھے جو کہہ رہا تھا جج بھی خود، ملزم بھی خود اور سزا بھی خود اور جناب غاصب بھی خود اور فلاں بھی خود، یہ کس کو کہہ رہا تھا؟ یہ جو کہتا ہے میان پڑھو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہیں سمجھتے ہو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ سامنے نقشے کے طور پہ کس کو بٹھا رہا ہے؟ کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے فاطمہ کو کٹیرے میں اپنے تصور میں کھڑا کیا، حالانکہ فاطمہ کٹیرے میں کھڑے ہونے والی نہیں ہے، وہ خاتون جنت ہے، پاکیزہ ہے، ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے۔ اس نے کہا تھا میرا جنازہ نہیں رات میں نکلے دن میں نہ نکلے، کسی کی نظر میرے کفن پر نہ پڑے، وہ دربار میں پیش ہو کر خطبہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے سیدہ فاطمہ کی توہین کی ہے۔ اور علماء کرام میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بات صحابہ کرام کی نہیں، انبیاء کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، مصطفیٰ کی بات ہے۔ آج کے اجتماع میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے اس محرم میں اور پچھلی محرم میں اہل بیت کی توہین کی جس کا تصور کرنے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت کی خواتین بنائی، ان کے ہاتھوں میں انہوں نے زنجیریں ڈالی اور ایک آدمی ان کو گھسیٹ کر اور پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جس کا تصور تم پیش کر رہے ہو یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ حضرت حسن کی بیٹی ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ سکینہ ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، جسے گھسیٹنے والا کون ہے؟ شرم نہیں آئی؟ یہ پیغمبر کے اہل بیت کی اس سے بدترین توہین اور کون سی ہوگی؟ علماء کرام جھوٹا دعویٰ ہے کہ میں اہل بیت کے محب ہیں، میں آج کہہ رہا ہوں یہ اصحاب رسول سے زیادہ اہل بیت کے دشمن ہیں اور اہل بیت کے غدار ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ اہل بیت کی توہین بتاتے رہے، اہل بیت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بتاتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ گھسیٹنے والا کون ہے؟ جو گھسیٹ رہا ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا جناب حسین رضی اللہ عنہ کی خواتین کو جس نے گھسیٹا تھا وہ کون ہے؟ کہا یزیدی تھا۔ میں نے کہا اب جو تمہارے پاس کھڑا ہے یہ کون ہے؟ تانے ہمیں دیتے ہو؟
तुम्हारी सभों में कौन खड़ा है? तुमने इसे बनाया, तुमने उसे बनाया। क्या कोई दुनिया की तस्वीर फातिमा की बेटी की तरह हो सकती है? क्या कोई मुजोर औलाद अली की तरह हो सकता है? तो इन्होंने औलाद अली की भी तौहीन की है, असहाब की भी तौहीन की है। और मैं अगली बात अरबाब इक़्तिदार से कहना चाहता हूँ, अरबाब इक़्तिदार हमें कहा जाता है तुम रुक जाओ। मुझे अफसोस है आज हमारे इस उलमा कन्वेंशन में रुकावट आ गई। मुझे कहा गया ये उलमा कन्वेंशन ना करो। मैंने सवाल किया क्यों? कहने लगे बात खत्म हो गई है। अब बात को नए सिरे से आप उठा रहे हैं। मैंने कहा करबला की बात कब से खत्म हो गई है? करबला की बात कब से खत्म हो गई है? हर साल जो उठाते हो उन्हें क्यों नहीं कहते बात खत्म हो गई है? फिर क्यों उठाते हो? तौहीन का रास्ता खुला छोड़ा हुआ है और दिफा के रास्ते को बंद कर रहे हैं। उसकी मिसाल ऐसी है, कुत्तों को खुला छोड़ दिया और बंदों को रोक दिया। जब तक कुत्ते नहीं बांधे जाएंगे, जब भी लोगों पर भौंकेंगे तो लोग अपना रद्द अमल जरूर देंगे। रद्द अमल से बचना चाहते हो, कुत्तों को लगाम देकर बांध दो, ना भौंकेंगे ना रद्द अमल आएगा। अरबाब इक़्तिदार तुम्हारे छोड़े हुए कुत्ते जब भौंकेंगे तो रद्द अमल तो जरूर आएगा। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? और यानी सुन्नत है जिन्होंने 13 मुहर्रम को ये गुफ्तगू सुनी, उसके बावजूद अपने रवैयों में तशद्दुद को नहीं लाए। मैंने कहा हम चाहते रोडों चौकों चौराहों पर आ जाते, रोड चौक चौराहे बंद कर देते। हम चाहते वजीर आला आ जाते। हमारे हाथों में कोई भेड़िया, हमारे हाथों में कोई चूड़ियां नहीं है। ज़बान तुमसे ज्यादा तेज हम रखते हैं। हमारी ज़बानों में कोई रुकावट नहीं है। हम दिल में कोई खौफ नहीं रखते। किस चीज का खौफ हमें दिलाओगे? हमें जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। कोई सहाबा की तौहीन करके ये समझेगा हम जिंदगी की भीख मांगते हुए आराम से बैठ जाएंगे। मैंने आज भी एक जगह कहा किसी को मैं बम मारना है मार दे। मैं सिद्दीक की जूती पे 1000 बार कुर्बान होना सादत समझता हूँ। अरे सालिमो, ये तो वो मौत है, ये तो वो मेहनत है, ये तो वो कोशिश और सेना और सादत है जिसको लिए हम गली गली पहले से नहीं कह रहे कि नाम सिद्दीक का है। हम गुलामों में शुमार होकर जाने कुर्बान करते हैं। अरबाब इक़्तिदार ये जुल्म हो रहा है, ये गुस्ताखी हो रही है और इस गुस्ताखी के नतीजे में हमारे लोग जो है वो जज्बात से बाहर आ रहे हैं। आज तीसरी बात आपसे करना चाहता हूं। दूसरी बात में अरबाब इक़्तिदार से कहता हूं इन पर एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सबका मुतालबा है। और अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये गिरफ्तार होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये किसी एक का मसला नहीं है। मैं आज खुली बात कर रहा हूं, बात शीयत की नहीं है। ऐसी गुफ्तगू कोई देवबंदी करे वो भी काफिर है, कोई बरेलवी करे वो भी काफिर है, कोई अहले हदीस करे वो भी काफिर है, कोई शिया करे वो भी काफिर है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने दायरे को वसअत देता हूं। अस्हाब रसूल हमें अपने मुकद्दस और मोहतरम है, उनकी तौहीन करने वाला किसी रूप में नहीं आएगा। नारा वही खड़ा होगा कि उसके कुफ्र में कोई शक नहीं। आज सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, हमने एक कदम आगे बढ़ाया है कि जो गुस्ताखी करे उस गुस्ताख के लिए कानून बनाए, उसे सजा दें। अगर आप सजा नहीं देंगे, मैंने कई जगह कहा हम बेबस हो जाएंगे जब फैसले काजी नहीं करेंगे तो कोई गाजी कर देगा। फिर परेशानी तुम्हें भी होगी, हमें भी होगी। हम एक बार फिर कोर्ट आपके कोर्ट में फेंक दिए। इन गुस्ताखों को गिरफ्तार करना किसकी जिम्मेदारी है? मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत भंग पी के ज्यादा सोती है और काम कम करती है। भंग की दुनिया से इन्हें उठाकर बताओ अबू बकर की तौहीन हुई है, लेकिन इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। इन्हें समझाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो अरबाब इक़्तिदार, रियासत के लोगों, इस जुल्म से बड़ा और जुल्म कौन सा हो सकता है? वक्त मेरे पास मुख्तसर है, दिल मेरा जख्मी है, अल्फाज और जुमले मेरी ज़बान पर वो आ नहीं रहे जो मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कि आज मेरे सामने डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर नहीं है,
गुज़िश्ता जलसे में वो हमारे साथ मौजूद थे, आज दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मारने वालों और कातिल न पकड़ने वालों, तुमने समझा शायद रास्ता साफ हो गया है। आज उलमा की तादाद पिछले साल से ज्यादा कर इसने साबित किया है हम हर जाने वाले के रास्ता जाने वाले पर रोने वाले नहीं है, हम उसके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। इसलिए आज हम हासिल करते हैं, हम आदिल शहीद के रास्ते पर इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। ऐसा करोगे नहीं करोगे? सब करेंगे। मैं उलमा का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब, जिस इदारे में हमें गए हमें मोहब्बत दी गई, तमाम लोगों ने हमें सरपरस्ती का कहा, हमारे काम और मेहनत को सराहा। आने वाले वक्तों में उन्होंने कहा हम आपके साथ रहेंगे। हर इदारे का नुमाइंदा, हर मदरसे का नुमाइंदा, हर जमात का नुमाइंदा यहाँ शरीक हुआ। इंशाअल्लाह 6 सितंबर को जो योमे दिफाए सहाबा के नाम से 1985 में एक जमात बनाई गई थी, मेरे कायद अल्लामा हक नवाज चंगदी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक तड़प थी, और वो तड़प ये थी कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस मकातब फिक्र पर मुश्तमिल एक तहरीक चलाई जाए। हम 6 सितंबर 2021 को इस तहरीक का आगाज कर रहे हैं जो तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा के नाम से होगी, जिसमें देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातब फिक्र के लोग सारे एक साथ जमा होकर इस तहरीक की बुनियाद रखेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने कायद की उस आवाज को और उस ख्वाब को हम पूरा करके बताएंगे। पाकिस्तान में रहना होगा तो सहाबा को मानना होगा। ठीक है इंशाअल्लाह। कल के लिए जुम्मतुल मुबारक का दिन है, मैंने एक इशारा आपको दिया, हमें अपने अदाओं पर गौर करने के बाद हमें यह कहना होगा कि हमने अमली मेहनत करनी है, और उस अमली मेहनत के लिए कल का जो जुम्मा है, ये जुम्मा पूरे मुल्क में उलमा कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक और आपसे डिमांड के मुताबिक हर मस्जिद में इस जुम्मे का उन्वान अज़मत सहाबा होगा और मुज़म्मत मुस्तखाने सहाबा होगा। क्या सब इस पर कल के जुम्मों के इज्तिमात में सहाबा की अज़मत को बयान करेंगे? मेरा ये ऐलान आपके तवस्सुत से मैं मुल्क भर के तमाम मसाजिद के देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातब फिक्र तक उलमा कमेटी का ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। कल हर मस्जिद के जुम्मे में सहाबा 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 की एक धूम मचेगी, इंशाअल्लाह मचेगी, और आप उस धूम में ये मुतालबा करेंगे और आपका मुतालबा होगा कि अज़मत सहाबा कुरान और सुन्नत से साबित है और सहाबा का मुनकिर मुसलमान है। तमाम मसाजिद में ये बताओगे। और अगली बात, अरबाब इक़्तिदार से हर मस्जिद में ये मुतालबा होगा कि इस मसले पर कानून साजी की जाए। क्या की जाए? कानून साजी की जाए। आइंदा के लिए हम एक एहतजाजी प्रोग्राम करना चाहते हैं जो जुम्मे वाले दिन मुख्तलिफ जगहों पे उस एहतजाज को किया जाएगा। उसका क्या तरीकाकार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बता दिया जाएगा। उसके साथ साथ गुज़िश्ता साल की तरह अज़मत सहाबा मार्च भी इंशाअल्लाह होगा और उसकी तारीख का बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। ये तहरीक हमारी अब आराम से नहीं बैठेगी, बल्कि ये तहरीक आगे बढ़ेगी। हमें मुल्क मिल्लत का ख्याल है, हमें अपने वतन का ख्याल है, इसलिए हम इस तहरीक को बड़े धीमे अंदाज में लेकिन मजबूत अंदाज में लेकर आगे चलेंगे। जब तक ये कानून नहीं बन जाता, गुस्ताख गिरफ्तार नहीं होते और उन पर जिन पर एफआईआर नहीं करती, हम आज आपकी मौजूदगी में ये ऐलान कर रहे हैं, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। मौलाना इकबाल साहब चेयरमैन उलमा कमेटी के आज तशरीफ नहीं ला सके, वो शहर से बाहर है। लम्हा बलमा उनसे राब्ता भी रहा, हज़रत अल्लामा धैरी साहब से भी मैं मुसलसल राब्ते में रहा, दीगर जिन जिन हज़रात के पास हम गए उनसे भी राब्ते में रहा। ये तमाम चीज़ें उनकी मुशावरत के साथ आगे बढ़ रही हैं और आइंदा भी आगे बढ़ेंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज का वक्त है।